Assalamualaikum. Welcome to the first video in the P1 Math lecture series. The first topic that we're going to study in P1 Maths is going to be quadratics. हम लोग quadratics क्यों सबसे पहले पढ़ते हैं? The reason we study quadratics first is because quadratics is a good easy transition from IGCSE math to A-level math. आप IGCSE में algebra बहुत ज़्यादा पढ़ोगे and अच्छी transition होती है कि आप direct from IGCSE अगर A-levels में आ रहे हो, A-levels in itself is much harder than IGCSE and there are going to be topics that are going to scare you very much so. लेकिन quadratics is not one of those topics. It is a simple, easy to understand topic जो आप जल्दी grasp कर सकते हो because you have that IGCSE base. So to actually warm up A levels and get to know about it, you need to study a topic that you are somewhat familiar with first. And that's why we're going to be studying and starting with quadratics. Alright, first question. What is quadratics? If you already know this then great, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, no problem at all. We're going to define quadratics in one sentence. Quadratics is the study of quadratic equations. So I'm just going to write this here, study of quadratic equations. सही हो गया जी? यार ठीक है भाई, quadratic equations के लिए स्टडी है, लेकिन quadratic equations in itself होता क्या है? Quadratic equations are, अब इसको हम हाईलाइट पहले कर लेते हैं before I actually tell you anything. ये देखो, ये जो हमारे पास वर्ड है ना quadratic equations, ये क्या है? Equations जिसमें highest power is square. ठीक है, highest power is square भी नहीं लिखना चाहिए, highest power is 2. वो equations जिसमें the highest possible power that exists is 2, उन equations को हम quadratic equations कहते हैं in the simplest of terms. And quadratics is the study of those equations. What are quadratic equations? The ones that have highest power of 2. And what is quadratics? It is simply the study of those equations. तो आप आगे जो भी conversation करोगे, जो भी discussion करोगे, इस base को mind में रखना है कि the highest power is always going to be 2. That is one fact that will never change. बाकी जो भी हो. Okay. Now the first main subtopic जो हम quadratics में पढ़ेंगे वो होती हैं forms. अच्छा जी, हम forms क्यों पढ़ते हैं quadratic equations की? सिंपल सी बात है, आपके पास जो है ना एक फॉर्म है, आप उसको स्टडी कर लो, कहानी ख़त्म. भाई हमें पता है इस तरह quadratic equations लिखने में सारे क्वेश्चन हम उससे अटैम्प्ट क्यों नहीं कर सकते? Why can we not do everything with that? The reason we can't do everything with that is that every form has its purpose. Every form will give you some new value that you would not have been able to find with the other form. तो अभी जब आप फॉर्म्स के टर्म्स में चीज़ों को पढ़ते हो ना, तो आपको पता होता है कि हमें ये निकालना है, अच्छा मुझे ये फॉर्म चाहिए, ये निकालना है, ये फॉर्म चाहिए, प्रॉब्लम ही कोई नहीं होगी. You will immediately go there. If you study one form and try to get everything from that form, it will take you ages in the exam, and that under exam pressure आप नहीं कर सकते. So you need to have on your fingertips, भाई ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, मैंने बस ये फॉर्म्स पढ़नी है, ख़त्म कहानी. पेपर आएगा, सवाल आएगा, मैं कर लूँगा. ठीक हो गया जी. तो सबसे जो हम पहली फॉर्म देखेंगे उसको हम कहते हैं द मोस्ट बेसिक फॉर्म, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. अच्छा, अभी मैं जो है ना सारी तीनों फॉर्म्स की जो जनरल फॉर्म है वो लिख देता हूँ और फिर उसके बाद उस पर फिर आगे हम स्टडी करेंगे. ax² + bx + c, दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म. अच्छा, अभी मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी हम बस नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे हम थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे ताकि बाद में आके इसको हम डिस्कस कर पाएँ. लेकिन द सेकेंड फॉर्म इज़ वर्टेक्स फॉर्म. इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म भी कहते हैं अगर आप वो कहना चाहो. और इसको जो लिखने का तरीका है ना वो है, पेन ख़राब हो रहा है, एक सेकंड को बस. ओके, इसको जो लिखने का तरीका है ना वो है a × x - b होल² + c. ऑलराइट, दैट इज़ हाउ यू राइट दिस इक्वेशन. थोड़ा सा अजीब तरीके से लिख दिया, लेकिन लेट मी जस्ट फिक्स दैट. देयर वी गो, x - b होल² + c. ऑलराइट, एंड अब इसको भी हम आगे आके वापस आके इसको डिस्कस करते हैं. अभी हम जाते हैं इससे भी नेक्स्ट फॉर्म पे और वो है हमारे पास रूट फॉर्म. ऑलराइटी, रूट फॉर्म को लिखने का तरीका है a × x - p × x - c. ऑलराइट, तीनों फॉर्म्स आपने लिख ली. एक दफ़ा जो है वो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ. तीनों फॉर्म्स को एक दफ़ा बस आप देख लो, सिंपली देखना है इसको, अभी कुछ नहीं करना, कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ एक दफ़ा देख लो कि यार तीनों फॉर्म्स किस तरह लिखी हुई हैं. ठीक हो गया जी, देख लिया. आप देखो, तब तक मैं जो अगले स्टेप पे मूव करता हूँ. लेट मी गेट अ गुड पेन कलर. आप देखते रहो इक्वेशंस. ओके, दैट माइट वर्क. बल्कि ऐसे करते हैं ना, इसको उसी पेन कलर से कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म. अच्छा जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में
सिर्फ आपको मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि भैया हर इक्वेशन से हम निकालते क्या। लिखी हुई इक्वेशन है उसको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, ये क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है और ये क्या वैल्यू है। ठीक हो गया जी। ए वैल्यू होगी हमारे पास वो वैल्यू जिसके साथ हाईएस्ट जो पावर है वो स्क्वायर्ड वाली पावर है, हाईएस्ट पावर स्क्वायर्ड वैल्यू होती है, वो ए वैल्यू के साथ होती है। बी वैल्यू वो होगी जिसके साथ एक्स होगा, सिर्फ कोई स्क्वायर्ड नहीं होगा। और सी पावर वैल्यू वो होगी जिसके साथ जो है वो कोई भी एक्स नहीं होगा, एक्स टू पावर 0 होगा। एक्स टू पावर 0 इक्वल टू 1 ही होता है, तो फिर वो c इंटू 1 c रहेगा, तो वो सिर्फ c होगा। अच्छा, अब एक चीज़ जो है ना, बिफोर वी इवन गो एनीवेयर, एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि यार ये जो बीच में ये साइंस हैं और ये जो साइंस और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं A, B और C, ठीक है, इसका मैं हाइलाइटर पूरा रिमूव ही कर देता हूँ बेशक। ठीक है, एक सेकेंड बस देना मुझे यार, एक सेकेंड बस। ऑलराइट, देयर वी गो। हाँ, तो ये जो तीनों टर्म्स है ना, A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। और हमारे पास जो साइंस है, ये जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन है बीच में, एक चीज़ समझ लो, ये चीज़ें सेट इन स्टोन नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं। बीच वाले साइन चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे कहीं माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है। ए की जगह आप बी लिख सकते हो, ए की जगह आप एस लिख दो, डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर कि लेटर कौन सा है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेंगे, लेटर स्विच कर देंगे, ए की जगह सी लिख देंगे, सी की जगह ए लिख देंगे। लेकिन जब भी आपने कुछ भी करना है ना, आपने समझना है कि यार एक्स स्क्वायर्ड के साथ वाली टर्म क्या है, एक्स के साथ वाली टर्म है। कोई भी अगर एक्स नहीं उसके साथ वाली टर्म क्या है, लेटर से नहीं कंफ्यूज होना, उसकी पोजीशन से समझनी है चीज़ों को। लेटर्स को नहीं देखना, पोजीशन को देखना है। ए वाली टर्म वो होगी जो एक्स स्क्वायर्ड के साथ होगी। ज़रूरी नहीं है वो ए ही हो, लेकिन वो टर्म को आपने समझना है, लेटर को नहीं समझना है। ठीक हो गया जी। अब जो है वो इसको जो है मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल इसका दे देता हूँ। 2x स्क्वायर्ड प्लस लेट्स से 5x प्लस 10। इसमें अब आपके पास जो है वो, इसको हम a कंसिडर करते हैं, इसको b कंसिडर करते हैं, इसको c कंसिडर करते हैं। अगेन मैं बताऊँगा, दिस इज व्हाट वी कंसिडर देम इन देयर जनरल फॉर्म। इफ दे आर नॉट इन देयर जनरल फॉर्म, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, डजंट मैटर। बस आपने कंसिडर करना है इसकी पोजीशन को, नॉट इट्स लेटर वैल्यूज़ को नहीं कंसिडर करना। ठीक है, लेटर वैल्यूज़ बस एक कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट मैटर करता है ना, वो लेटर्स तो नहीं मैटर करते। एनीवेज, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए। अब हमने ये देखना है कि भैया हमने अब स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालना क्या। अब मैं जो ना इस सारी जो मैथ्स है ना, इसको सही की तरह से लिख देता हूँ ताकि नोट्स में आसानी हो। ओके जी, ये लो, अब सही तरह से इसको लिख दिया, एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया नीचे। अब हम निकालना चाहते हैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म से निकलता क्या है। सबसे पहली चीज़ जो निकलती है, देयर इज़ अ कपल थिंग। सबसे पहली चीज़ आप निकालते हो शेप। ठीक है, शेप कैसे निकालते हो? शेप आप ऐसे निकालते हो कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना, ए वाली वैल्यू, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास ए वाली जो वैल्यू है, उसके साथ जो साइन है, सही है, उस पर डिपेंड करता है। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल ले लें, ये 2, इसके साथ साइन क्या है? इसके साथ साइन है पॉजिटिव। जब आपके पास ए के साथ साइन पॉजिटिव होगा तो आपके पास शेप बनेगी इस तरह की, स्माइली फेस। इससे याद रखना, जब भी आप पॉजिटिव होते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो आप हमेशा स्माइल करते हो। सिंपल सी बात है, आपने स्माइल करना है। आप पॉजिटिव इंसान हो, गुड यार, आप स्माइल करते हो, तो शेप भी ग्राफ की पॉजिटिव बनेगी क्योंकि आप स्माइल कर रहे हो। तो पॉजिटिव के लिए आपके पास ये शेप बनेगी, स्माइली फेस, और नेगेटिव के लिए आपके पास ये फ्राउन बनेगा। क्योंकि भैया जब आप नेगेटिविटी स्प्रेड करना चाहते हो, आप सैड होकर करोगे ना, आप हंसते हुए तो नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड होती, सिंपल सी बात है। तो जब आप नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो तो आप फ्राउन करोगे, तो इससे याद रखना कि भैया फ्राउनी शेप होगी, ये इस तरह की शेप होगी। एक जो है वो उल्टा यू होगा, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं आई लाइक द स्माइल एंड फ्राउन मोर। सही हो गया जी। तो ये हम लोग कहाँ से निकालें? ए की वैल्यू से। अच्छा, ए की वैल्यू कौन सी है? जो एक्स वाई के साथ है। ए मैटर नहीं करता, वो वैल्यू मैटर करती है जो एक्स वाई के साथ है। जो वैल्यू एक्स वाई के साथ, अगर वो पॉजिटिव है स्माइली फेस बनेगा, नेगेटिव है सैड फेस बनेगा। सिंपल। नंबर 1 शेप निकाल ली। नंबर 2, एंड दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी गेट, एंड दैट इज द वाई इंटरसेप्ट। सिंपल, वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। वाई इंटरसेप्ट क्या बोला है? तो वाई इंटरसेप्ट हम यहाँ ऊपर इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 0। ऑलराइट, इसको ग्राफ से समझना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन बेसिकली ये है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सही है, ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ। इस तरह मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। अब इसके ऊपर ये वाला हमारे पास एक्स एक्सिस है, सॉरी गलत कह दिया, ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस है और ये वाला हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब इसके अंदर जिस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी, अब देखो ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0, दिस इज़ द ओरिजिन। अब अगर आप यहाँ से जो है वो इस साइड पे जाओगे, टुवर्ड्स दिस साइड,
द राइट साइड तो x की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रही है, इस साइड पर जाओगे तो x की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रही है, सही है। ये x का हो गया, और यहाँ पे ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रही है, नीचे जाओगे तो y की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट पे रहो x के अंदर, आप इसी पॉइंट के ऊपर रहो और सिर्फ y के ऊपर जाओ, लेट से आप इधर आ गए, या सिर्फ y से नीचे जाओ और x को आप राइट या लेफ्ट ना करो अपने पॉइंट को, सिर्फ ऊपर या नीचे करो, एक ही पॉइंट पर खड़े हो ऊपर या नीचे, x नहीं चेंज हो रहा, आपके पास सिर्फ या ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, x की वैल्यू भी जीरो है, क्योंकि आप ओरिजिन पर हो ना, वहाँ पर जीरो होती है, वहाँ से ऊपर जाओगे सिर्फ y की वैल्यू चेंज होगी, नीचे जाओगे सिर्फ y की वैल्यू चेंज होगी। तो वो वाला पॉइंट जो भी आपने पिक किया है जिसके ऊपर x की वैल्यू जीरो है और y की कोई भी वैल्यू, डजंट मैटर वैल्यू क्या है, वो पॉइंट हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। अगर मैं इस पॉइंट को ग्राफ करूँ ना, तो लेट से अगर हम लोग इस तरह का एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज़ कॉल्ड दी y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट फ्रॉम आवर इक्वेशन हम लोग निकालते हैं c से। इसको मैं कलर कर लेता हूँ इस वाले से, ठीक है, ये हम लोग निकालते हैं इससे। तो ये हमारे पास जो c की वैल्यू होती है, अगेन c की वैल्यू लेटर नहीं मैटर करता, वो वैल्यू जिसके साथ कोई भी x नहीं है, नो x, सही है, सिर्फ अकेले वैल्यू, तो उसको हम c की वैल्यू कहते हैं, और वो वैल्यू जो होगी वो हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा। ग्राफ में अगर आप लिखो ना तो आप इस तरह लिख सकते हो 0c, ये x की वैल्यू होती है। पहले आप x, जब भी आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में ग्राफ कर रहे होते हो उसका आपने लिखना होता है ना कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो आप पहले x लिखते हो फिर y लिखते हो। तो जो हमारे x लिखा है वो हमने 0 लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वहाँ पे तो x की वैल्यू 0, क्योंकि क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मतलब कि ग्राफ हमारे पास y एक्सिस से टकरा रहा है, y इंटरसेप्ट से इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस से इंटरसेप्ट कर रहा है। जब वो y एक्सिस से इंटरसेप्ट करेगा तो भाई इसका मतलब है कि आप इस तरह हो या ऊपर या नीचे, आप जो है इस तरह नहीं हो, तो आपके पास x की वैल्यू 0 होगी। सही हो गया जी, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन एसेंशियली समझाने का मकसद ये है कि हम c से जो है y इंटरसेप्ट निकालते हैं, और y इंटरसेप्ट वो वैल्यू होती है जहाँ x की वैल्यू 0 होती है, वो कोऑर्डिनेट होता है जहाँ x की वैल्यू 0 होती है। ऑलरेडी तो हम लोगों ने दो चीज़ें निकाली, एक हमने y इंटरसेप्ट निकाला है जो हमने इस वैल्यू से निकाला है, और एक हम लोगों ने जो है वो शेप निकाली है जो हमने इससे निकाली है। अभी b का इसमें कोई काम नहीं है, इससे हमने निकाल लिया y इंटरसेप्ट ऑलरेडी, और इससे हमने निकाल ली शेप। तो ये हमने पढ़ ली पहली फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वर्टेक्स फॉर्म।